गाइस आज है वेब्स का सेकंड डे और सेकंड डे पे शेड्यूल मैं आपसे शेयर करूँगा जैसे पहुँचूँगा तो चल रही है। मैं ऑन द वे ही हूँ, आप देख होंगे ट्रैफिक है थोड़ा बहुत। और जैसे पहुँचेंगे मैं आपको सेकंड डे का पूरा जो भी शेड्यूल है वेव्स का वो चलेंगे। और जो मैंने फुल ब्लॉग डे 1 का आप लोगों के लिए किया हुआ है वो जाके आप देख सकते हैं, वो चैनल पे है। और जो भी कमेंट्स हो वो आप मेरे को बताइएगा। तो ऑन द वे है, जल्दी पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वेव सेकेंड डे पे। मैं पहुंच चुका हूं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। आज है सेकंड डे वेव्स का और मैं आज शेड्यूल सारा जितना भी है आपको शो करूंगा। तो मैं आ चुका हूं कन्वेंशन सेंटर और भीड़ आप देख रहे हो, शुरुआत से ही काफ़ी भीड़ है। अभी टाइम 10 साढ़े 10 ही बजे है और कितनी भीड़ है। चलते हैं ऊपर और फिर आगे का अपडेट आपको करता हूँ। applied their mind and their emotions and said, "Okay, yeah, let's do something in media and entertainment. Let's make that powerful. Let's let India be a leader in that." Now, whether we finally become a leader or not is that we will see. But the fact that the present government has thought about it and has actually made the effort to announce it and organize it is, I think, it's a huge initiative and it's a huge opportunity. It's a huge opportunity for
first time the government is showing interest in us. This is the time. What we discussed today in Waves, a lot of all these discussions will actually finally translate into policies. So this is a dialogue that has just started. I feel it's the first time that this dialogue has started between the film fraternity or the entertainment fraternity. It's not just films. Between the creative fraternity and the government. It's the first time that dialogue has started, I feel. So I think it's a very welcome, start. And this can, with the correct kind of dialogue that we have with the government, we can actually come out with certain policies that have a very deep and far-ranging impact on the business in the creative fields, in the different fields. As you rightly said, nobody knows the future, but this is the present. We're seeing more of them. Collaborative projects like these are essential for promoting shared values, family, honor, patriotism, and spirituality, and for bringing our peoples and nations closer by creating new cultural touchstones that resonate with the youth of both countries. I would also like to highlight that beyond producing films, another effective area of collaboration is film distribution. As I mentioned earlier, one of our we can learn about life in a country thousands of kilometers away, immerse ourselves in another cultural context, emotionally connect with another people, and better understand them. Collaborative projects between just to speak further about the speakers who are lined up for the next session. Badshah, he was born as Aditya Prateek Singh Sisodia. He's a leading Indian rapper and singer known for chart-topping hits. And he the first name which comes into our mind is of course of this really cool gentleman from the same city where I am from, and I really admire his journey. He's been really, I mean, it sounds cliche, but he really has been a brother from another mother. I met him 15 years ago for the first time at a radio station, and I think at that time he was not as big as he is today. Can I, if you allow me, can I break the story to the world? Please, I need to tell this. So, I had a song, it's almost 15 years now. I had a song called Saturday, Saturday. Yeah. Come out at that point of time, which was back in 2012. And we managed to get a major label to release it, otherwise But the point is, no radio station was ready to play that song because it was coming from two unknown guys. This guy, and I kid you not, I swear, I'm sitting on the stage right. This guy fought with the radio station and he was the first one to break that song on the radio. Love you too, Baji. I think it's beautiful to meet him all the time. When I say brother from another mother, it really sounds cliche, but I really take him as my soul brother. He's also my ex-neighbor. That's too much. प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया इवेंट का, क्या कहना चाहिए, किस तरह से बूस्ट करेगा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को? the topic for the session is music, what it takes to go global. So, welcome on. भाई ब्रेक होने वाला है और सेशंस मैंने आपको दिखाए जो भी चल रहे हैं अंदर, और ब्रेक होने वाला है। अब जल्दी से कुछ खा पी लिया जाए और फिर उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होंगे ब्रेक के बाद वो सारा फिर से एक बार शेड्यूल, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी शोज़ है लाइनअप में, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून। मीटिंग पूरे बहुत के साथ है।
WCC 3 गेम और इसके विनर्स हैं द ब्रॉन्ज गोज टू पप्पू कुमार प्रियदर्शी, सिल्वर गोज टू लव शर्मा और गोल्ड जीता है और हमारे बीच महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। एक बार जोरदार तालियां फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। चैलेंज आईएनबी मिनिस्ट्री ने थ्रो किया था और क्रिएटर्स ने दुनिया के 70 देशों से इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड किया। 1 लाख लोगों ने, यंग क्रिएटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और क्रिएटिविटी एट इट्स पीक हमें देखने को मिली। जाजू जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं आईएनबी मिनिस्ट्री के, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे मिनिस्टर वैष्णव जी को बधाई देना चाहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज वेव्स हम देख रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भारत को क्रिएटर्स इकोनॉमी के इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे आगे रखने का, वो मुझे यथार्थ में पूरा होता हुआ दिख रहा है जब आप सबको मैं यहां पर देखता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि वेव्स तो 4 दिन चल रहा है, लेकिन वेव्स की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन सारे क्रिएटर्स ने ये जो चैलेंज है क्रिएटिविटी का, ये स्वीकारा और आप सब लोग इसमें कूद पड़े। उसी दिन वेव्स सफल हो गया। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से जिनका अवार्ड मिले हैं ऐसे सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इससे आपकी क्रिएटिविटी को और ऊंचाई मिलेगी, आपको और इंस्पिरेशन मिलेगी और इस क्रिएटिव वर्ल्ड में क्रिएटर के रूप में आप नई ऊंचाइयों को छुए। इस प्रकार की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इंडिया टुडे और आईएनबी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि अगली चुनौती है वेव्स एक्सप्लोरर और इसके विनर्स हैं ब्रॉन्ज दीपक कुमार गुप्ता, सिल्वर नीरज रॉय एंड अंतोष रॉय एंड गोल्ड goes to अपूर्वा राज। कैटेगरी इज ट्रूथ टेल हैकेथन और विनर्स है ब्रॉन्ज जीता है टीम वोटिक्स और सिल्वर गोज टू टीम पुशिंग लायर्स, वाओ व्हाट अ नेम, एंड गोल्ड जीता है टीम एल्केमिस्ट ने। आज मेरे को पूछ रहा है इतने यंग लड़के लड़कियां जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये वेव्स के जरिए उन सबको ये मौका मिला है कि वो अपना काम दिखा सकें, आगे बढ़ सकें। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन संजय जी। हमारी जो बात हुई थी, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल एंड दिस इज समथिंग, ये एक चीज़ है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि हमारा देश इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतने लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं हर जगह। तो मेरे मन में ये बात शुरू से थी कि वेव्स के जरिए उन सबको ये एक मौका मिलेगा अपना काम दिखाने का। आई एम सो हैप्पी दैट इट्स कमिंग आउट सो वेल। Congratulations. एंड आपने क्या पूछा था, क्रिएटिविटी क्या है? वो सबका अलग होता है मुझे लगता है, लेकिन सबका अलग होता है। बट इट्स यूजुअली समथिंग विच इग्नाइट समथिंग इन यू, ब्रिंग्स आउट आइडियाज विच कभी कभी हमें भी नहीं पता वो कहाँ से आते हैं। सो दैट्स अ मिस्ट्री विच इवन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। सच बताऊं, इनकी जो क्रिएटिविटी है इससे सारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो इंस्पायर होते हैं। पर जोरदार तालियां फॉर आमिर खान सर। सर, वन वर्ड इफ यू कैन जस्ट थैंक आमिर सर एंड आवर लवली पीपल हु आर हियर, एंड थैंक यू टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। शिंदे, कम ऑन गाइस, कीप क्लैपिंग
नाइस संकेत जादू से, ये सब हमारे क्रिएटर्स इन चीफ हैं और ये आने वाले हमारी क्रिएटिविटी का फ्यूचर है, तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। The next challenge is innovate to educate. I've been in this film industry for quite some time. He said 3 decades, it's a little more than that. But I've not seen anything like this in my career, film career. Something like waves. What they've created here is incredible, and I really congratulate the Information and Broadcasting Ministry, the Government of India, our Honorable Prime Minister Modi ji for creating something like this, waves. And जीरा 90.8 FM, सिल्वर, सिल्वर अपना रेडियो 96.9 FM और गोल्ड जीता है बार पटना कम्युनिटी रेडियो ने। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल दीज 3 रेडियो चैनल्स। संगीत की कैटेगरी में ये चैलेंज हुआ था और ये 3 अमेजिंग टीम्स ने जीता है ये चैलेंज। Come on, keep the claps coming, keep the music going. अगला चैलेंज है वाह उस्ताद चैलेंज और इसके विजेता हैं ब्रॉन्ज संदीप मोहंती, सिल्वर शालिनी और प्रथम स्थान यानी गोल्ड जीता है आबाद अहमद ने। The next challenge is Battle of Bands, Indian Bands और इसके विजेता है ब्रॉन्ज SOS, सिल्वर सूफी रॉकर्स, I like the name, गोल्ड जीता है द बैरागीज ने। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां फॉर द विनर्स ऑफ दिस कैटेगरी, Battle of Bands, Indian Bands। And the next category is Battle of Bands, International Bands और उसके विजेता है ब्रॉन्ज 20 FUS, सिल्वर नाइट्स and the gold goes to the Ebenezer Music। Winners of international category. जैसे कि संजय सर ने कहा, they have been participations from over 60 countries and these are the winners of our international band category. संगीत में अगला चैलेंज है Symphony of India और इसके winners हैं Bronze goes, come on, keep the hooting coming, come on guys. This needs to be shown some energy. All right. And Symphony of India कैटेगरी के विनर्स हैं ब्रॉन्ज टीम प्रवाह, सिल्वर जी शार्प और प्रथम स्थान मिला है यानी गोल्ड जीता है फनकार्स को। Can you feel my energy? Yes, no? और एनर्जी लगाओ, ठीक है? क्या बात, तो आप भी थोड़ा एक बार तालियां बजा दो यार हमारे विनर्स के लिए। They are putting so much hard work और यही खूबसूरती है
स्टेज की, मंच की और इस प्लेटफॉर्म की, that we will all together celebrate our winners, their hard work and the future creators in chief of the country and of the world. All right. अगली चुनौती है थीम म्यूजिक प्रतियोगिता और इसके विनर्स हैं ब्रॉन्ज गोस टू टी भाव गणेश, सिल्वर ये भाव गणेश खुद बोला होगा, सिल्वर गोस टू विवेक अविनाश चंद्र दुबे, एंड गोल्ड गोस टू कुणाल कुंडू और अल्लाह सरदारा और इनकी टीम ने। द EDM चैलेंज और इसके विजेता हैं ब्रॉन्ज क्षितिज नागेश कोडवे, सिल्वर मयंक हरीश विदानी एंड गोल्ड गोल्ड गोस टू श्रीकांत वेमुला। इसी एनर्जी के साथ सबको आना है भाग के। Our future has to be fast and enduring. अवार्ड लेने आ रहे थे, उनकी आंखों में एक चमक थी, भविष्य को लेकर चमक थी और इनको एम्पावर करने के लिए मैं इस इनिशिएटिव का जितनी तारीफ कर सकता हूँ उतनी कम है। और आप क्रिएटिविटी के बारे में पूछ रहे थे, तो किसी को उगते हुए सूरज में क्रिएटिविटी नज़र आती है, किसी को डूबते सूरज में क्रिएटिविटी नज़र आती है, किसी को माँ की लोरी में क्रिएटिविटी नज़र आती है, किसी को पिताजी की फटकार में क्रिएटिविटी नज़र आती है। और जहाँ तक लहरों की बात है, उसके बारे में दो लाइनें जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। It's it has really changed how we do our A&R to create music with your back and support. You know, I spent the last 2 days in awe of this country, of the ambition, what I've seen at this conference. How do you feel about it? Like, I'm sure you got the phone call a month or 2 months ago that they're going to create this thing called Waves. Now it's here, you've seen it. We saw all the dignitaries yesterday. It feels so big and important. You must feel like the founding father of Waves. No, it's a very good initiative by our Honorable Prime Minister, and means this will give us good wings to fly out of India and to the world again in terms of taking our music to the world, because with Waves, then the kind of the platform it's being created now, it will definitely help us in future. गई तेरे को वो भी गई तेरे को कौन सी शीशे के मिरर के सामने जो वो बाकी वाली जो दो मैंने आपको बोली ना, एक जहाँ मैं बैठा हूँ उस तरफ से लास्ट, वो जिसमें मैं आगे आके बैठा हूँ लास्ट। गाइस, जैसा आप देख रहे हो, मैंने सेशंस पूरा आपको दिखाया और अब हो चुकी है शाम, तो पूरे डे भागा दौड़ी में लगी रहे। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी
और देखते हैं और आगे क्या है। मैं जा रहा हूँ अंदर एक बार देखने फिर से, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। डे 2 का जो भी आज मैंने शो किया है आपको, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।